observe it, you won't have it. लेकिन अगर आप उसको देखोगे नहीं, उसको ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं। जब तक साइंटिस्ट ने देखा नहीं, वो तरंगे ही रही। Until the time the scientists did not observe, they remained as waves. जब देखने लगे तो ठोस बन गया। When they began to see it, it became solid matter. Now let me tell you what biblical faith is. अब मैं आपको बताता हूं बाइबल के अनुसार विश्वास करना क्या है। Okay? जेनेसिस में परमेश्वर ने पहले ऑब्जर्व किया, पृथ्वी कैसे बनाऊंगा मैं, पूरा क्रिएशन है। He observed. In Genesis, God first saw in his heart, he observed in his heart how he'll make the whole earth. And then he spoke. और तब उसने बोला। Okay? He observed. उसने ऑब्जर्व किया अपने अंदर। Then he spoke. तब उसने बोला। The waves जो तरंगे थी condensed वो इकट्ठा हुई and took the form of what he was observing, and we saw it became reality. और जो कुछ वो देख रहा था उसका रूप ले लिया और हकीकत बन गई। यानी जो मोल्ड है, That means the mold is in your heart. वो आपके दिल के अंदर है, जो खांचा है उसका। The Bible says a good man out of his heart brings forth good things, and an evil man out of his heart brings forth evil things. एक भला मनुष्य अपने दिल के भले खजाने से भली वस्तुएं पैदा करता है, निकालता है, और एक बुरा मनुष्य अपने दिल के बुरे खजाने से बुरी वस्तुएं निकालता है। आप देख रहे हो अभी जो दिल्ली में हो रहा है, आप इस बिल्डिंग को देख रहे हो, इस कलीसिया को देख रहे हो, ये कैसे हुआ? हमने कोई भीख नहीं, मैं अपने कमरे में बैठ के वचन की घोषणा करता था और उसके बाद देखता था ऐसा स्टेज होगा, ऐसे लोग बैठे होंगे, और उसके बाद घोषणा करता था that the answer that was in the sound form condensed and became the church. What you are seeing today happening here, this church, I did not beg, but in my room I would observe, I would see this is how it will be, and then I made declarations as per the word of God, and this is how the church has come out to be. पड़ोसी को बोलो, भीख नहीं मांगनी। Tell your neighbor, do not beg. सीखना है विश्वास कैसे कार्य करता है। Learn how faith works. क्यों? एक ही चीज है बाइबल कहती है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। There is only one thing by which God is pleased, the Bible says. क्या है वो चीज? What is it? विश्वास। जानते हैं क्यों? You know why? क्योंकि विश्वास आपको वैसे ही कार्य कराता है जैसे परमेश्वर है। Because faith makes you operate the way God operates. Okay? So a quantum physicist said, एक क्वांटम फिजिसिस्ट ने कहा, whatever you're expecting जो कुछ आप उम्मीद कर रहे हो is already present in ध्यान से सुनना कितना, 100 billion possibilities. जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 100 बिलियन तरहों से पहले से ही मौजूद है। 100 बिलियन तरहों से प्रकट हो सकता है, उसकी संभावनाएं, इट कैन बी मैनिफेस्टेड इन, मगर प्रकट तभी होगा जब तुम विश्वास की आंखों से पहले देख लोगे, तब वो प्रकट होगा। but it will manifest when you will first see it with the eyes of faith, then only will it manifest. Your healing is already here. Your आपकी deliverance चंगाई is already पहले से here. है। आपका छुटकारा यही है अभी। Bible says you've been healed by the stripes of Jesus. बाइबल कहती है यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। That scripture is already reverberating वो शब्द, वो वचन यहीं पर पहले से मंडरा रहा है, in the form of waves, तरंगों के रूप में, waiting for one person to catch it and to see by the eyes of faith that I am healed by the stripes of Jesus. इंतजार कर रहा है कि एक व्यक्ति हो जो मुझे देख ले, विश्वास की आंखों से मुझे देखकर पकड़ ले कि मैं पहले से यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं। ओके? मुश्किल तो नहीं है। प्रार्थना रिलीजियस डिसिप्लिन नहीं है। Prayer is not religious discipline. Prayer is the medium through which the visible world and invisible world interact and exchange things. प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा अदृश्य दुनिया और दिखाई देने वाली दुनिया आपस में बात करते हैं और आदान प्रदान करते हैं चीजों का। See, because we have become religious, क्योंकि when we pray, we don't expect anything. Because what we are doing, we are thinking, I have to pray 1 hour. That's what we expect. But we don't expect the answer. क्योंकि हम धार्मिक बन गए, इसीलिए जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ होगा इसकी उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीद है कि 1 घंटा प्रार्थना करना है क्योंकि वही करने के लिए बैठे। क्यों करना है प्रार्थना? ये अच्छा है प्रार्थना। इट्स अ गुड थिंग टू प्रे। प्रार्थना करो। क्यों करो? प्रे। व्हाई? No. We pray with a mandate. There is a revelation behind why we pray. हम एक मकसद के साथ, एक प्रकाशन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। कारण है कि हम प्रार्थना करते हैं। That means every time you pray, you expect that God will move.
इसका मतलब जब भी आप प्रार्थना करते हो उम्मीद करो कि परमेश्वर काम करेगा। Okay, put Mark 11:24. मरकुस 11:24। I pray that you get it today. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पकड़ें आज इस बात को। Okay, so see, what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, believe that you receive them तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है and you will have them. और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें अब मिल ध्यान से जाएगा। सुनो। Religion says धर्म कहता है one day God will give you. एक दिन परमेश्वर तुम्हें देगा। Jesus says यीशु कह रहे हैं believe when you pray you have received it. जब प्रार्थना कर रहे हो तो तभी मान लो कि तुम्हें मिल चुका है। You're not getting it. Jesus doesn't say what religion says. यीशु वो नहीं कहते जो धर्म कहता है। Religion says धर्म कहता है one day God will give you. एक दिन परमेश्वर तुम्हें देगा। Jesus says यीशु कह रहे हैं when you pray जब तुमने प्रार्थना किया believe that you have received it. मान लो कि तुम्हें मिल गया है। Okay, now question comes, सवाल ये उठता है how can I believe I have received something when I have not seen the answer? मैं कैसे मान लूं कि मुझे मिल गया है जब मैंने उसका उत्तर देखा नहीं है अभी। कई लोग इस बात को नहीं समझते। Many people don't So वो क्या understand. करते हैं? So what they do? वो कहते हैं हाँ मैं बिलीव कर रहा हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। Yes, फिर I अपने believe बॉडी को I'm चेक healed. करते हैं। Then they check their bodies वो कहते हैं नहीं हुआ। and they say no, I'm not healed. यहाँ पे दो चीजें हैं। There are two things here. Believe you receive them, मान लो कि तुम्हें मिल गया है then you will have them. और तब तुम्हें मिल जाएगा। Receiving happens in the unseen realm. ग्रहण करना अदृश्य दुनिया में होता है पहले। When you receive your answer, जब आप अपना उत्तर ग्रहण करते you हो have no physical evidence that you have got the answer. तो कोई शारीरिक सबूत नहीं कि उत्तर मिल गया है। समझ आया? You understand? पहले जब विश्वास कर लोगे कि मिल गया, जब अनदेखे में मिल गया तो देखे में प्रकट हो जाएगा। When you will first believe that you've got it, that which is in the invisible will show up in the physical. मगर अगर पहले ये विश्वास नहीं किया कि मिल गया तो आप वेट करते हो, एक दिन प्रभु देगा। और प्रभु कह रहा है कब तू विश्वास करेगा? But if you do not believe in the invisible, that you've already got it in the invisible, you will keep on waiting. One day God will give and God will keep on waiting. When will you believe? आपने आज गवाही देखी, उस बहन ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट पे लिख दिया। You saw the testimony that sister जब wrote on her थायराइड report. पूरा 9 था When her तब thyroid लिख was दिया 9, she मैं wrote, टाइम स्टैम्प कर दिया, मैं चंगी हो चुकी हूं। she time stamped that I am healed on this day and this time. Believing happens in the unseen realm. मानना अदृश्य दुनिया में होता है। लोग रिसीव करने को और उसके मैनिफेस्टेशन का अंतर नहीं समझते। तो लोग क्या प्रार्थना करी, कहां अभी तक तो हुआ नहीं, परमेश्वर ने तो कुछ करा नहीं। People don't understand the difference between receiving in your heart, receiving inside, and its answer coming up on the And outside. that's why what do they do? They keep begging, they keep begging, they keep begging, वो but भीख they मांगते don't रहते हैं, believe. भीख मांगते रहते हैं, लेकिन मानते नहीं है। See, we have taught people to pray, 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 but we have not taught them how to believe. हमने लोगों को ये तो सिखाया कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लेकिन ये नहीं सिखाया कि कैसे मानना है। Because Jesus didn't just say pray and you will have it. He said pray and then he's giving us the secret. You pray and you believe that you've received it and then you will have it. यीशु ने सिर्फ ये नहीं कहा प्रार्थना करो, उसने कहा जब प्रार्थना करते हो तो ये मान लो कि तुम्हें मिल चुका है और तब तुम्हें मिल जाएगा। Okay? समझ रहे हैं आप लोग?